So we just discussing about hemoglobin, right? शुरुआत कैसे किया था हमने? Hem and globin molecule, right? और एक hemoglobin को अगर आप देखोगे, they are composed with the two different molecules. One will be the heme portion called as your iron. Globin portion is called as your protein, right? और उसके बाद से एक combination बन जाता है hemoglobin का, right? This is we can say that proportions. One part of your protein get required 4 parts of your iron not composed to form single hemoglobin, right? एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको दिखाया था अंडरस्टैंडिंग के लिए, right? One portion required, right? Then second thing, now in hemoglobin they contain protein molecule. प्रोटीन क्या होता है? दे आर नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड रहता है, लेकिन वो कैसे बनता है? दे आर कंपोज विद द पेप्टाइड्स, उसके अंदर पेप्टाइड्स होते हैं एंड दैट पेप्टाइड्स दे आर कंपोज फ्रॉम द अमीनो एसिड्स. नाउ दीस कांसेप्ट्स, ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको आपके बीसीपी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है, उसमें आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगा, राइट? अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है आपको, दैट प्रोटीन नथिंग बट दे कंपोज विद द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड और उसके अंदर होता है पेप्टाइड्स. पेप्टाइड लिंकेज से अमीनो एसिड अटैच हो जाता है, लॉन्ग चेन बन जाता है, दैट विल बी फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज अ प्रोटीन. ओके, तो इस तरीके से बन जाता है. बट इन हीमोग्लोबिन you may found there are two peptide chain in single protein. उसमें ना दो टाइप का चेन आपको नजर आएगा. That two chain they called as a chain A and chain B. उसको एक नाम दिया जाता है chain A and chain B. ये हो गया आपका composition of your hemoglobin, right? One more thing regarding function of your hemoglobin or function of your RBC. The major function we have, are you remember major important function of hemoglobin? Yes, sir. What is that? Transport of oxygen in blood. Exactly. It carries oxygen molecule from lungs to the your body cells or to the your body tissue, right? But how it carry that oxygen? When your hemoglobin, now अभी आपको याद रखना है एब्रिविएशन हीमोग्लोबिन के लिए एब्रिविएशन यूज होता है कैपिटल H स्मॉल b, that is called as hemoglobin. Hemoglobin when combined with oxygen they form one molecule called as that molecule is called as oxyhemoglobin molecule. Okay, is it visible? Yes, sir. They just found the hemoglobin molecule. Okay. Then second thing, when hemoglobin is bind or combined with your react with your carbon dioxide, okay, then what it forms? It forms one complex structure called as carboxyhemoglobin, right? It forms carboxyhemoglobin. इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Okay. Normal values also we discussed in last session. Are you remember what is the normal range, normal value of hemoglobin in male, in female? बताइए किसी को पता होगा तो. 12 to 16 gram per 100 ml of blood. Okay, 12 to 16 किसमें होता है? ग्राम पर 100 ml in female, right? Yes. For male, how much hemoglobin range? 30.5.
18 gram per 100 ml of blood in male. It is 13.5 to 18 gram percent, right? In male. Okay. What about for infants? 14 to 20 gram per 100 ml of 14 to 20 gram percent in infants. Okay. So these are, we can say that, normal values. Then afterwards we discuss about your WBC, right? If you just see that PDF, I already shared on your WhatsApp group. Okay? In that I just mentioned about your WBC. Okay? WBC के बारे में उसमें दिखाया गया है, right? So what is that WBC? We are saying that WBC, or they are also called as leukocytes. Okay? उसमें क्या होता है? That leukocyte is get classified in two class. Okay? Sorry. Let's see now. If you see the leukocytes, they are classified into two classes. Remember that class? Yes, sir. Yes, sir. yes sir What is it called? granulocyte and Granuleucocytes and organoleucocytes. Very good. Granular leukocyte or granular leukocyte. Okay? ग्रैन्युलर एंड अग्रैन्युलर, इसको अलग से नाम दिया जाता है ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट. ओके, मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको साइट का मीनिंग क्या होता है. साइट स्टैंड्स फॉर सेल. ओके, ग्रैन्युलोसाइट मतलब those cells they possess granules or granular appearance in the cytoplasm of the cell. WBC के सेल में अगर जो साइटोप्लाज्म है उसमें अगर आपको ग्रैन्युलर नजर आएगा, that will be considered as granulocytes or granular leukocyte. Agranulocyte or agranular leukocytes, it means they don't possess granular structure in cytoplasm. It is not easy to observe, right? It is not easy to observe. इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या जरूरी है? We require that higher magnification, right? Higher magnification कहाँ मिलेगा? By using your microscope, but उसमें हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप they have a higher magnification, so उससे क्या हो जाता है? इजीली आप लोग देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट, right? Then after their types, okay, are you remember that type? What are the three types for granulocytes? Remember? yes sir What is that? Eosinophils, okay, then basophils and neutrophils. Okay. Eosinophil, basophil and neutrophil. What about agranulocytes? It consists two types, that is Lymphocytes and monocytes. lymphocytes and monocytes. Very good. जो हमने लास्ट सेशन तक इतना पार्ट देख लिया था टाइप्स ऑफ द सेल्स, ओके, हम
just in last session we discussed about the granulocyte, agranulocyte. उसका difference क्या है? They are having the granular appearance in the cytoplasm of the granules in the cytoplasm, while agranulocyte they don't have the granules inside. Second thing, near about 70 to 75% you may found granular leukocyte, while near about we can say 25 to 30% of granulocyte you may found in the blood or as compared to total leukocyte. अगर आप बोलोगे टोटल WBC हमने पढ़ा है उसमें कितना परसेंट है, लगभग कोई बोल सकते हैं कि tentative we have that idea how much cells will be there. Okay. Now, what are these three types? How we get types? When you want to identify your eosinophil, basophil, neutrophil, before उसका बताने से पहले एक बात आपको बताता हूँ. इसमें हमने एक वर्ड देखा होगा. अगर आप स्केल देखो कैसे से न्यूट्रोफिल्स, आपने एक न्यूट्रल वर्ड सुना होगा. न्यूट्रल पता है आपको? न्यूट्रल पीएच रेंज भी सुना होगा. क्या होता है न्यूट्रल रेंज? सर आपका वॉइस क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा. About leukocytes, जो हम लोग ने लास्ट सेशन तक देख लिया था, सेल्स, देयर क्लासिफिकेशन, ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट, राइट? इतना सुनाई दिया था तभी टेक्निकल एरर आने से पहले. ग्रैन्युलर क्या Yes, होता sir. है, राइट? Yes. सब टाइप्स also we know, right? Now one hint for you. Have you heard that word neutrophil? ओके. आप लोगों ने एक वर्ड तो देखा न्यूट्रल. आर यू नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. न्यूट्रल पीएच रेंज पता है? Yes, sir. 7. It is 7. Okay. Why we called as a neutral? उसको न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल just see. Here you consider here acid. Here consider alkali or base. Okay. And that middle will be considered as a neutral. Okay. जो एसिड भी नहीं है, अल्कली भी नहीं है, या तो बेस भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, राइट? यहाँ पर आपको एक वर्ड मिल रहा है न्यूट्रोफिल्स. इट इज समवॉट
having same concept as that of your pH, कि pH के जैसे इसको concept है, ठीक है. Then second thing, basophils. You may find that word base, whatever I mentioned here, right? अभी यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा pH रेंज यहाँ पे 7 है, इधर से 1 से शुरू होगा, इधर नियर अबाउट 14 है, right? बेस नजर आ रहा है आपको, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू योर अल्कली, जिसका पीएच रेंज ज्यादा रहेगा, राइट? दैट विल बी कंसीडर्ड एज द बेसोफिल्स. रहेगा क्या है? इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल्स को अलग से एक नाम दिया गया है एसिडोफिल्स. यू मे फाइंड हियर वर्ड एसिड, right? Acid means it is consist pH range of 1 or near about 1 to 3. Got it? इस पर से सेल डिवाइड किया गया है eosinophil, basophil and neutrophil, right? But if you want to identify those cells, we have to use some staining reagent, right? Have you heard that staining reagent? I think in pharma practical. Yes, sir. Yes, sir. Right? स्टेनिंग पता है आपको? I think you might be seeing that the fluororesinol HCl that will be Yes, sir. identify lignin. ओके, जो आपका सैंपल रहेगा उसमें लिग्निन है या नहीं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. या तो आपको स्टार्च अगर देखना है, आपके सैंपल में स्टार्च है या नहीं, उसके लिए आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया जाता है. दैट विल बी कंसीडर्ड एज द स्टेनिंग एजेंट. ओके, नाउ for identification of these cells, we are also performing some staining agents or we are using some dye. Okay, हम लोग dye use करते हैं. आपको dye पता है? Yes, sir. Hair dye, right? Hair dye आपको पता रहेगा for to give colors to your hair. Now here we are using some dye to identify these cells. We are using first dye, that is acidic dye. राइट, इओसिन नाम का एक डाई होता है, उसको हम लोग लेंगे. राइट, यू जस्ट टेक द ब्लड सैंपल ओवर योर ग्लास स्लाइड, उसके ऊपर आप ड्रॉप ऑफ ब्लड ले लो, राइट, या तो फिर थोड़ा ब्लड सैंपल ले लो. देन यू जस्ट पास दैट सम एसिडिक डाई, उसके ऊपर डाल दो, उसको मिक्स कर लो अच्छे से. प्रॉपर मिक्सिंग होने के बाद में माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करो, राइट, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू जस्ट ऑब्जर्व दोस सेल्स. अगर राइट, इफ your blood cells they shows some colorations, right, like अभी एसिडिक का कलर ज्यादातर आपको नजर आएगा, they are nothing but having some reddish color, right? So if your cells they are showing some colors, right, somewhat we can say that as that of your acid, if they are produces some color, you can consider that will be called as your eosinophils. Okay. Now second, you just take the same sample, right? जो भी एक पर्सन का सैंपल होगा उसी को फिर से ले लो ओवर ग्लास लाइट. यू जस्ट पास द सेकेंड डाई, आपको सेकेंड डाई उसमें से पास करना है, राइट? अभी वो एक्चुअली इतना इजी नहीं है कि ब्लड का ड्रॉप ले लिया और उसमें मिक्स कर दिया और आपको आइडेंटिफाई हो गया. उसके लिए एक अलग से मेथड होता है जो हम प्रैक्टिकल वर्क में देखेंगे. प्रैक्टिकल में मैं आपको बता दूंगा वो कैसे बनता है, राइट? आपको एक फिल्म बनानी होती है, राइट, आपके ग्लास लाइट पे ब्लड भी दैट ड्राई फिल्म के ऊपर से आपको ये सॉल्यूशन पास करने होते हैं, राइट? सो इन सेकेंड सिचुएशन यू जस्ट टेक द अल्कली डाई और बेसिक डाई, you just mix with your that sample and then observe under microscope whether if you got colors as that of your alkali or as that of your base, then that will be considered as a basophils. समझ में आ गया सेकेंड? Now third situation we have. Under third situation, if the same sample if you taken and if you pass your acidic dye over that sample, you can pass your alkali dye also. But if your cells they are not showing any coloration to any dye, to not for the acidic, not for the alkali dye, if they are having their original color as it is, or we can consider they are having the transparent color as it is, then that will be considered as a neutrophil.
इतना समझ में आता है? दैट्स इट, वी डिस्कस इन लास्ट। उसमें एक बार चेक करिए, राइट? वी आल्सो डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके? We discuss characteristics like for your neutrophils. Neutrophils near about 60 to 70% of your total granulocyte जो होता है उसको में आपका neutrophils होता है, right? Then one second, okay. Then regarding their lifespan, so it having very less lifespan, near about 1 to 2 days only. Average diameter, it consists average diameter like 10 to 12 millimeter. Diameter बहुत छोटा होता है उसका, right? Then regarding their nucleus, now they consist 1 to 4 lobes. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका सेल हो गया, इसके अंदर में भी उसका एक ही रहेगा लोब न्यूक्लियस में, और मे बी 2 लोब्स भी हो सकता है इस तरीके से, मे बी न्यूक्लियस हैविंग 3 लोब्स और मे बी कंसीडर द 4 लोब्स। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। सो न्यूक्लियस इफ यू सी दे मे पोजेस द स्ट्रक्चर लाइकवाइज, दे आर कंसीडर्ड एज अ लोब्स। Sir, Are you getting? I think दिसत आहे. It is not visible. No, sir. No, sir. Okay. Now Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन अभी मैं एक बात बोल सकता हूँ आपको कि इसमें जो न्यूट्रोफिल होता है उसका सेल इस तरीके से, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है सिंगल लोब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, डबल लोब जो रहेगा तो ऐसे न्यूक्लियस बन जाएगा, 3 लोब्स अगर रहेगा तो इस टाइप से बनेगा, 4 लोब्स ऐसे। अगर वो स्ट्रक्चर आप देखोगे न्यूक्लियस का आपको इस तरीके से नजर आएगा, राइट? या तो ऐसे लगेगा या तो इस तरीके से होगा, right? So that will be considered as a neutrophils, okay? Then about eosinophils, so eosinophils they having number 2 to 4% of your total granulocyte, okay? टोटल ग्रैन्युलोसाइट के 2 से 4% आपका जो है eosinophils आपको मिलेगा, okay? Then if you can stain that eosinophil with acidic dye, okay, with acidic dye like eosin, eosin के साथ में वो कलर देता है इसलिए उसको नाम दिया गया है eosinophils, okay? So eosinophils if you treat with the that acidic dye it may produces some colorations, okay? Regarding lifespan, so it have lifespan about 1 to 2 days only, okay? Lifespan इसका भी कम होता है, right? Then regarding nucleus, so it can consist few lobes. न्यूक्लियस में से few lobes होते हैं, 4 होते हैं, 5 हो सकते हैं, but usually it only possesses the 2 lobe nucleus. इस तरीके से उसका न्यूक्लियस होता है, 2 lobes न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है, राइट? अभी उसका अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है 2 lobes का, या तो फिर इन दिस वे दैट अरेंजमेंट विल बी देयर, ओके? देन regarding average diameter, so it also having the diameter about 10 to 12 millimeter, okay? आपको diameter समझ में आता है? For example, अगर आपके पास में एक सर्कल है इस तरीके से, इसका diameter मतलब क्या बोलोगे आप? जो मिडल पोर्शन है जिसका ल्यूमेन हम बोल सकते हैं, अंदर का जो पार्ट है उसका जो टोटल नाप रहेगा that will be considered as a diameter, right? So the having diameter is very less, 10 to 12 millimeter, okay? Then basophils, about basophils, basophils सबसे ज्यादा कम होता है, near about only they having 0.5 to 1% of your total granulocyte, okay? बहुत ज्यादा कम होते हैं, okay? Then granules stain with the basic पर्पल ब्लू कलर, इसको क्या किया जाता है कि बेसिक डाई के साथ में ट्रीट किया जाता है, दैट में प्रोड्यूसेस द ब्लू कलर और समवॉट पर्पल कलर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर डिवाइडेड दैट इनटू द basophils, okay? Then regarding the lifespan, so it is also having the lifespan near about 1 to 2 days only, okay? Then
nucleus, so they consist the irregular nucleus, but usually bilobe nucleus may be found. Okay, bilobe मतलब इसमें भी दो दो ही लोब होते हैं. Bi stands for two, so they may possess two lobe nucleus like this. Okay, are you getting? This is about your granulocyte. Then second one about agranulocyte. So agranulocyte, the name always leads to one major confusion, that the cytoplasm does not contain granules. हम लोग ऐसे भी बोल देते कि ग्रैन्यूल्स नहीं है, बट एक्चुअल थिंग क्या होता है इसमें, अग्रैन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल्स होते भी है, लेकिन दे आर हैविंग वेरी स्मॉलर साइज, राइट. इतने ज्यादा स्मॉल होते, दे आर नॉट इजी टू आइडेंटिफाइड अंडर माइक्रोस्कोप. अगर आपको देखना होगा ग्रैन्यूल्स है या नहीं, तो उसकी साइज ऑलरेडी छोटी रहेगी, और उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा तो हम लोग मतलब जनरली वी आर यूजिंग द स्टेनिंग एजेंट. जैसे इसमें स्टेनिंग एजेंट यूज के आपको समझ में आ जाता है इसमें है, राइट. इसको अगर स्टेनिंग एजेंट यूज करोगे टिल दे आर नॉट शोइंग एनी कलर, वो किसी स्टेन को कलर देगा ही नहीं, वो कलर नहीं देता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है अग्रैन्युलर साइट्स, राइट. देन that agranulocytes, they are divides into two major class, that is lymphocytes and monocytes. Lymphocyte and monocyte. That lymphocytes, they consist further three types, like your B cells, T cells and natural killer cells. Okay, इस तरीके से तीन टाइप दिए गए हैं. रिगार्डिंग देयर we can say that the silent features or characteristics, if you consider, so they possess very small lymphocytes, 6 to 9 millimeter size. They are generally they are in round shape. 20 to 25% of your total WBC they may found in our body, right. That's it, we are considering about lymphocyte. Then main role of that lymphocytes, अभी बी lymphocyte जो होता है, that will be may provide, that may improve your immune system. Okay, ये क्या कर देता है हमारे बॉडी में कि इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है. whatever they are reacting in your plasma, they just pass into the blood plasma and then just develop the immunoglobulins. Okay, due to immunoglobulin they are able to secrete antibodies. Okay, वो एंटीबॉडी सीक्रेट करने में आपको हेल्प कर देगा बी से. टी सेल क्या करता है, दे जस्ट इंप्रूव द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी. ये भी सेम फंक्शन ही परफॉर्म करेगा, बट दे जस्ट इंप्रूव द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग कर देगा हमारे बॉडी में, राइट. देन अबाउट मोनोसाइट्स, सो मोनोसाइट 3 to 8% we may found in our body. 12 to 20 micrometer their diameter we have, and they possess the oval or kidney shape. इसका शेप थोड़ा अलग से होता है, बट अगर आप क्लास देखोगे दे आर फर्दर डिवाइड इनटू मैक्रोफेजेस. उसको कन्वर्ट किया जाता है मैक्रोफेजेस. दे आर आल्सो हैविंग डिवाइडेड इनटू टू मैक्रोफेजेस. फर्स्ट वन we can say that fixed macrophage, and second one they are called as a wandering. आपको ये वर्ड तो पता होगा, वंडरिंग मतलब क्या होता है, दे आर नॉट स्टेडी एट सिंगल प्लेस, दे आर वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो थोड़ा घूमते रहेगा. फिक्स मैक्रोफेजेस मतलब वो एक स्पेसिफिक एरिया में रहेगा, स्पेसिफिक तरीके से एक्ट होगा, या स्पेसिफिक तरीके के सिचुएशन पे ही एक्ट होगा, राइट. मैक्रोफेजेस दे आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, और वी कैन से दैट सम एंटीजेनिक इन्फेक्शंस. वो खुद को अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर देता है, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम योर WBC. नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू लर्न फॉर टुडेज लेक्चर, द डिसऑर्डर्स ऑफ योर ब्लड सेल्स. अभी डिसऑर्डर्स भी हमें देखने हैं, राइट. नाउ we are just moving towards the disorder, in that we will focus on the first disorders related to your RBC.
Now related RBC, in that we found the first anemia. Okay. आपको एनीमिया का स्पेलिंग दो टाइप में भी मिल सकता है. That is nothing but you may consider any. Both are right. Okay, जो आपको easy लगे, you just remember it. Now about anemia. Okay. एनीमिया क्या होता है, एक सिंपल आपको बता देता हूँ. हमने एक बात देखा था अबाउट ये अभी डिसऑर्डर देख रहे हैं हम किसके, आरबीसी का. इसमें एक बात देखा था हमने, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी कंसिस्ट योर एचबी, राइट. एचबी यानी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, इन रेस्पिरेशन में कैसे, रेस्पिरेशन मतलब मैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट रेस्पिरेशन ऑफ योर बॉडी सेल्स और टिश्यू, जिसमें क्या करता है, इट कैरी ऑक्सीजन एंड इट एट रिटर्न बैक इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल. इसमें एचबी क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे बॉडी में बढ़ा देता है, राइट. बट we found the first disorder anemia. That anemia is nothing but, we can say that the oxygen carrying capacity of the blood is decreased, that it will be called as the anemia. Are you getting definition? Yes, sir. Yes, sir. The oxygen carrying capacity, right, oxygen carrying capacity of blood is decreased, that will be called as anemia, right. इतना समझ गए. अभी ये क्यों हो सकता है डिक्रीज, देयर आर मोर फैक्टर हो सकते हैं उसमें. फैक्टर्स लाइक अगर आपका आरबीसी लेवल बॉडी का कम हो जाएगा, डेफिनेटली दैट पर्सन इज सफर फ्रॉम एनीमिया. आरबीसी लेवल ही कम होगा तो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए उतना वो ट्रांसफर नहीं होगा, दैट मे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनीमिया. गॉट इट. नाउ आपके पास में पीडीएफ है, उसमें एक बार देखिए, we have the various concept now here under anemia. Okay, just see, anemia refer to decreased oxygen carrying capacity of blood, oxygen carrying capacity of blood, and which may due to the deficiency of RBC. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन क्यों कम होती, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ योर आरबीसी. Then anemia, we have there number of types of anemia. Okay. Now just see the types of anemia. In that first we have blood loss anemia. Blood loss anemia. क्या हो सकता है blood loss anemia? Name itself indicates नाम भी दिया है ना, ब्लड, बॉडी में हमारा जो ब्लड है दैट विल कंसीडर एज अ ब्लड. देन लॉस, ब्लड लॉस कब हो सकता है बॉडी से, एक यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा हीमोरेज. You may found that word hemorrhage. Hemorrhage, that will be stands for the excessive loss of blood. आपके बॉडी से अगर हीमोरेज होते रहेगा, ब्लड लॉस होते रहेगा, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल कंडीशन अगर हो जाती है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है हमारे बॉडी से, राइट, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनीमिया कॉल्ड एज ब्लड लॉस एनीमिया. ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली आपका जो है ब्लीडिंग से आरबीसी लेवल जो रहेगा दैट विल डिक्रीज. आरबीसी लेवल कम हो जाएगा, जितना आरबीसी लेवल कम होगा उतना ज्यादा आपके बॉडी में एनीमिया होने का चांसेस रहेगा. फर्स्ट हमने जो देखा एनीमिया, उसमें टोटल कंसीडर किए गए फैक्टर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेपरेट सब टाइप्स ऑफ एनीमिया. In that we have first the blood loss anemia,
यानी हीमोरेज जब हो जाता है हमारे बॉडी में, ड्यू टू हीमोरेज डिक्रीज इन आरबीसी में फाउंड एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड लॉस एनीमिया। एक अलग से थिंग क्या है, अगर आपके बॉडी से ब्लड लॉस भी हो जाता है बट विद इन 1 to 2 days our body, our blood plasma is try to maintain the level। वो क्या कर देता है कि आपका लेवल जो है उतना मेंटेन कर देता है, आपका जो ब्लड चाहिए 5 लीटर 6 लीटर उसके बीच में जो ब्लड चाहिए उतना लेवल इस बॉडी का लेकर आएगा। बट बॉडी का फ्लूइड लेवल फिर भी उतना हो जाए लेकिन आरबीसी लेवल उतना नहीं रहता, दैट्स व्हाई दैट पर्सन may suffer from blood loss anemia। okay, now second one we have aplastic anemia। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। aplastic anemia। Now, aplastic anemia, it is due to the lack of functioning in your bone। आपके बोन मैरो में क्या हो जाता है कि बोन मैरो का रोल क्या है, करने का काम आपका बोन मैरो कर देता है, बट उसमें क्या हो जाता है बहुत से बार क्या थोड़ा सा बोन मैरो का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता है, बोन मैरो उस तरीके से प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं कर पाता है आपके ब्लड सेल्स को, राइट। उसके वजह से क्या हो जाता है आपके बॉडी में इमैच्योर सेल सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, या तो फिर प्रॉपर आरबीसी नहीं हो पाता है, आरबीसी लेवल उतना नहीं हो पाता जितना चाहिए, दैट कंसेप्ट इज कंसीडर्ड एज aplastic anemia। Then third we have megaloblastic anemia। Third we have megaloblastic anemia। अब megaloblastic anemia that may develop due to deficiency of folic acid or deficiency of vitamin B12 in the body। हमने रिसाइक्लिंग ऑफ हीमोग्लोबिन देखा था, इन रिसाइक्लिंग इधर से देखिए साइड से किसको भी आ रहा था विटामिन B12, राइट। फिर कहा था हमने लिखा था फोलिक एसिड। These are two concepts, they are required for the synthesis of your RBC। RBC synthesis में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, but if deficiency of vitamin B12 or deficiency of folic acid found in our body, due to that your erythrocyte will not be get developed properly, that cannot be divided normally, and that RBC may be get rupture repeatedly। okay, क्या हो जाता है कि अपनी बॉडी में प्रॉपर वो मैन्युफैक्चर नहीं होता, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। तो जैसे भी वो बन जाएगा दैट मे गेट रप्चर, आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत प्रेशर वगैरह आ जाता है, डेफिनेटली दैट ड्यू टू दैट योर आरबीसी मे गेट बर्स्ट, वो रप्चर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगी, और ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको एक कंसेप्ट जो है अप्लास्टिक एंड मेगालोब्लास्टिक, ये सेकंड ईयर तक या तो बहुत सारे आपको ड्रग्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें साइड इफेक्ट में भी दिखेंगे। ओके, देन hemolytic anemia, fourth one we have hemolytic anemia। now what is hemolytic, just see, abnormal hemolysis can be because of hemoglobin defect, abnormal RBC enzyme or defect of RBC membrane। that hemolytic anemia may also be caused by parasites, toxin and antibody from incompatible blood। hemolytic क्या होता है कि एक सिंपल वर्ड याद रखिए आप यहाँ से आगे, जब भी आपको लाइटिक वर्ड नजर आएगा, लाइटिक और लाइसिस, दैट मीन्स ब्रेकडाउन, दैट मीन्स ब्रेकडाउन। हमारे बॉडी में क्या होता है कि ब्रेकडाउन होता है, किसका ब्रेकडाउन होता है, हीम यानी ब्लड का। कब होगा ऐसा ब्रेकडाउन, व्हेन डिफॉल्ट एबनॉर्मल, अगर आपका आरबीसी डेवलप हो गया है उसमें
उसमें डिफॉल्ट कुछ हो चुका होगा मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे विटामिन वगैरह उतना नहीं मिल पा रहा है, राइट, या तो फिर कुछ अलग से रीजन भी हो सकते हैं। कभी क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी में जरूरत होती है इन चीजों की, राइट। ये चीजें कहाँ से मिलती है हमें, खास करके हमारे फूड मटेरियल से, लाइक योर ग्रीन वेजिटेबल्स से आप लोग को अपने बॉडी में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे विटामिन B12 हो गया या तो आपका फोलिक एसिड हो गया। बट हमारा प्रॉब्लम ही यही है, वी आर नॉट प्रेफरिंग ग्रीन वेजिटेबल्स। क्यों? हमें अच्छा नहीं लगता है उसका टेस्ट। सही बात है ना? आप में से बहुत से लोग हो गए जो खाते ही नहीं होंगे ग्रीन वेजिटेबल, हमारे खाने की प्लेट में भी आ जाते हैं तो हम उसको साइड में कर देते और बाकी का खा लेंगे। इसके वजह से क्या हो जाता है, आपके बॉडी में जो बैलेंस चाहिए वो नहीं रह पाता है। जो बैलेंस चाहिए नॉर्मली ब्लड सेल्स के लिए, जो चीजें चाहिए सिंथेसिस में, वो चीजें उसमें से नहीं आ पाती, एंड ड्यू टू दैट इस टाइप की आपको बीमारी नजर आ जाएगी। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नेक्स्ट वन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अभी नाम में दिया है, अगर आपके बॉडी में आयरन नहीं आएगा, आयरन लेवल नहीं रहेगा, डेफिनेटली उसके वजह से क्या होगा, जो आपका प्रॉपर हीमोग्लोबिन प्रॉपर आपका आरबीसी बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, प्रॉपर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नहीं डेवलप होगा, एंड उसके वजह से जो भी आपके बॉडी में एनीमिया कंडीशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। अभी आपको ये भी पता होगा कि आयरन जो है आपको फूड से ही मिलता है, राइट। ग्रीन वेजिटेबल्स जो है हम लोग साइड में कर देते हैं, वहां से हमें ज्यादातर मिल जाती है ये चीजें, राइट। बट अभी मैं तो आपको ये बोलूंगा, आज से अगर आप लेक्चर होने के बाद में जब भी खाना खाने बैठोगे, ग्रीन वेजिटेबल्स को साइड में मत करिए, शुरू कर दीजिए आज से थोड़ा आपका फूड में इंटेक जो है वो बढ़ा दीजिए, राइट। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा एक टाइम पे बैठ के बहुत ज्यादा खा लो तो आपका ब्लड अच्छा हो जाएगा, राइट। एटलीस्ट यू स्टार्ट विद दी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा ले लो, राइट। टेस्ट बोलकर ले लो, राइट, थोड़ा बहुत ले लेना, जिससे क्या होगा कि आपका जो फिजियोलॉजी है वो नॉर्मली चलेगा, राइट। आपको जो चीजें चाहिए वेजिटेबल से, जो फूड से चीजें चाहिए वो आपको प्रॉपर मिलते रहेगा, ओके। देन लास्ट टाइप वी हैव सिकल सेल एनीमिया। आपने ये वर्ड सुना होगा सिकल सेल, Yes, sir. right? In sickle cell what happen, it is due to genetic mutation that causes substitution of one wrong amino acid in the particular portion of globin at low oxygen concentration. In many capillary, hemoglobin molecule combine with each other to form the fiber like structure, and which distort the erythrocyte membrane to form a sickle shape. Such a sickle RBC occlude and burst in capillary leading to the anemia, right। इसमें क्या हो जाता है, प्रॉपर थिंग, जैसे मैंने आपको तब बोला था, आपका जो हीमोग्लोबिन है, राइट, हीमोग्लोबिन में दो मॉलिक्यूल है, एक तो आपका हीम पोर्शन है, दूसरा आपका ग्लोबिन है, राइट। अभी ग्लोबिन में भी क्या हो जाता है, दे आर कंपोज्ड विद प्रोटीन्स। ग्लोबिन में आपका प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन कैसे बनता है, दे आर कंपोज्ड विद लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, उसमें लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, राइट। बट उसको भी सीक्वेंस होता है, राइट। लॉन्ग चेन में एक अलग से सीक्वेंस रहेगा, जैसे आपका एलानिन हो गया, एलानिन के बाद में आपका वैलिन होना चाहिए या ग्लाइसिन होना चाहिए या टायरोसिन चाहिए, वो अमीनो एसिड कैसे सीक्वेंस रहेगा। बट इन यूर फिजियोलॉजी अगर गलती से भी उसमें का जो सब्स्टिट्यूशन है, जो चेन रहेगा लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, उसमें का अगर बीच में कोई अमीनो एसिड अगर रॉन्ग पेस्ट हो जाए, राइट, गलती से भी अगर दूसरा अमीनो एसिड अगर चला जाएगा वो चेन में, देन दैट चेन इज नॉट प्रॉपर, वो प्रॉपर बनेगा नहीं। अगर वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन लेकर नहीं जा सकता, अगर वो प्रॉपर नहीं लेके जाएगा, फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेल ऐसा है, बट ऑक्सीजन लेवल तो हमें तो क्या करता है, खुद में एक फाइबर बना देता है, खुद में इधर से उधर ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है, ड्यू टू दैट जो है आपका स्ट्रक्चर जो है सेल का इस तरीके से बन जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिकल शेप, राइट। ऐसा क्रॉस एंगल बन जाता है, राइट। एंड ड्यू टू दैट अगर वो सिकल सेल
बन जाएगा तो उसमें जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है, उसमें वो फाइबर बनाना शुरू कर देगा, एंड ड्यू टू दैट में लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनीमिया कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। ये भी बीमारी पीछे बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, बट इतना इफेक्टिव नहीं थी जितना अभी कोरोना है। गॉट इट? सर यस। Yes, sir. एक बार सुनाई नहीं दिया? आवाज नहीं आ रही हमारी? सर रिपीट करो ना सर, सिकल सेल एनीमिया। ओके, सिकल सेल रिपीट करना है। ओके, नॉर्मली क्या होता है हमारे बॉडी में? ब्लड सेल होता है, राइट? आरबीसी राउंड शेप में, आपको सबको पता है, राइट? आरबीसी कैसे बनता है? आरबीसी में क्या होता है आपके? दे हैव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन कैसे बना है? दे कंपोज विद टू पोर्शन, हीम एंड ग्लोबिन पोर्शन। अगर हीम देखोगे तो दे आर नथिंग, उसमें कुछ नहीं, हीम जो है आयरन एज इट इज रहेगा, बट ग्लोबिन जो है, ग्लोबिन नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन। ओके, और प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन में लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, ठीक है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इस तरीके से लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होगा जो अटैच हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने 8.8 डैश किए हैं, उसमें लाइंस ड्रॉ किए हैं, राइट? दे आर कंसीडर्ड एज अमीनो एसिड। ऐसा कंसीडर कर लो कि आपके पास में अमीनो एसिड है, उसका सीक्वेंस कैसा है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरीके से उसका सीक्वेंस होना चाहिए, बट कभी क्या होता है, डिफॉल्ट क्या हो जाता है कभी बॉडी में, अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, राइट? इंस्टेड ऑफ 4 में भी आपके 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, या आपका 4 इधर चला जाएगा, राइट? उसका जो सीक्वेंस है, म्यूटेशन जो होता है हमारे बॉडी में, म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन इतना प्रॉपर अगर नहीं हो पाया, और वो जो अमीनो एसिड चेन है वो अगर डिफॉल्ट हो गई, सीक्वेंस जो है वो गलत हो गया, तो क्या हो जाता है? सीक्वेंस गलत हुआ तो उतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं ले पाता है जितना चाहिए, राइट? अगर ऐसी बात हो जाए तो सेल क्या करती खुद से, हमारी आरबीसी जो है, दे आर ट्राइंग टू फॉर्म द फाइबर ब्रिज, तो खुद में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करेगा इधर से लेके इधर तक। अगर फाइबर ब्रिज बन जाए तो खुद से ऐसे सोचता है कि ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाऊंगा, राइट? बट इट कुडंट बी फाइंड एज मच ऑक्सीजन, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, एंड इस तरीके का अगर शेप उसमें आ जाए तो उसको बोलते हैं सिकल सेल शेप। ओके, सिकल शेप में चला जाता है, एंड जितना चाहिए उतना प्रॉपर वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाता, ना ही उधर चाहिए उतना दे पाता है, so that will be considered as a sickle cell anemia. Got it? यस सर। Okay, after sickle cell, ये जो देखा हमने, ये फर्स्ट देखा एनीमिया फर्स्ट टाइप, उसमें सब टाइप देखे थे, राइट? नाउ वी हैव सेकंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर फॉर द आरबीसी। आरबीसी के लिए सेकंड टाइप है जो आपके सामने पीडीएफ में भी दिया हुआ है। सेकंड टाइप नथिंग बट योर hemolysis। hemolysis, okay? lysis का मीनिंग बताया था अभी आपको, that is nothing but we can say that the breakdown, okay? Now if you see the hemolysis, it is the condition where hemoglobin is liberated in the plasma due to the breakdown of erythrocyte, okay? जैसे अभी बताया था आपको लाइटिक और लाइसिस, इट मींस ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने से क्या होता है आपका, अगर कंसीडर कर लो दिस विल बी एन आरबीसी, आरबीसी अगर ब्रेकडाउन होगा तो उसमें से जो भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो खास करके कहा जाएगा आपका प्लाज्मा में आ जाएगा, ब्लड प्लाज्मा जो रहता है उसमें आ जाएगा, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द hemolysis। hemolysis क्यों होता है हमारे बॉडी में? they given some reasons when hypotonic saline or distilled water, the screen is visible? No, sir. No,
No, sir. No, Yes, sir. ओके अगर ऐसे हो जाए तो मुझे बताया करो, बिकॉज हैंडल करने कोई भी नहीं, मैं खुद ही कर रहा हूँ। सो अगर कुछ लग जाए आपको, ऐसे स्क्रीन नहीं दिख रहा है कुछ, तो तुरंत बताइए। ओके मुझे वरना इधर से आना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है। नाउ उसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, फैक्टर आप देख लो, फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिर्फ आप लर्न कर सकते हो। ठीक है कभी क्या हो जाता है हमारे बॉडी में, क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो इंसर्ट हो जाता है, या तो फिर डिस्टिल वाटर डायरेक्टली अगर इंजेक्ट हो जाए बॉडी में, ब्लड में खास करके, दैट में लीड्स टू दी स्वेलिंग ऑफ योर आरबीसी, और स्वेलिंग होने के बाद में उसका बर्स्ट होना हो ही जाता है, या तो फिर वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड थिंग मे बी ड्यू टू द फैट सॉल्वेंट लाइक योर क्लोरोफॉर्म ईथर, अगर क्लोरोफॉर्म ईथर आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, देन दैट में बी डिसॉल्व योर आरबीसी, आरबीसी सेल मेम्ब्रेन जो है उसको डिसॉल्व कर देता है, राइट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए, आप उसमें से लर्न कर सकते हो। ठीक है देन थर्ड टाइप आल्सो वी हैव हियर, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। अभी एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आपके बॉडी में आरबीसी है, अगर आरबीसी लेवल जो है आपके बॉडी का डिक्रीज हो जाए या तो कम हो जाए, तो तब कंडीशन होती है एनीमिया। अगर आरबीसी लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाए और इंक्रीज हो जाए, उस टाइम पे कंडीशन होती है कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। ओके सो पॉलीसाइथेमिया इट इज डिसऑर्डर वेयर द concentration of RBC is greater or get increased than the normal range. Okay. Are you getting that? Yes, लेवल sir. अगर बढ़ जाए नॉर्मल से, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया अगर बढ़ जाता है तो इसमें एक चीज होता है, आपका जो ब्लड है दैट विल बी लुक्स लाइक मोर थिक, विस्कोसिटी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। थोड़ा सा थिकनेस जो है ब्लड का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट विल बी द इंडिकेशंस और आइडेंटिफिकेशन फॉर द पॉलीसाइथेमिया। डिसऑर्डर हैव यू अंडरस्टूड फॉर योर आरबीसी? आरबीसी में 3 डिसऑर्डर है, एनीमिया, हीमोलाइसिस, पॉलीसाइथेमिया। एनीमिया में सब टाइप्स हमने देखे, सब टाइप्स कौन से देखे थे, लाइक फर्स्ट ब्लड लॉस एनीमिया, सेकेंड अप्लास्टिक एनीमिया, थर्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फोर्थ hemolytic anemia, iron deficiency anemia, and last one your sickle cell anemia. Got it? In exam there will be always question, इस पर एक क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो डेफिनेशन पूछा जाता है, दोनों में तीनों में से खास करके दोनों पे ज्यादा फोकस होता है, एनीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया, राइट। डेफिनेशन पूछा जाता है या तो फिर टाइप्स ऑफ एनीमिया भी पूछा जाता है। ओके नाउ सेकंड वन, डिसऑर्डर्स ऑफ योर डब्ल्यूबीसी। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में दो ही डिसऑर्डर आपको नजर आएंगे, ओके, लाइक ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोसाइटोपेनिया। Leukocytosis means what? When your blood cells, when your WBC cell is greater than the normal range or more than the normal range, that will be called as leukocytosis. And if your WBC level is less than the normal, that will be called as a leukocytopenia. Okay, that will be called as a leukocytopenia. Are you getting? We only have two disorders in your WBC. Okay. Shall we proceed? Yes or no?
आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, समझ में आया? आरबीसी डब्ल्यूबीसी Yes, sir. ओके. Yes, sir. Now we are moving towards the third part of your blood. ब्लड में कौन से सेल देखे हमने? ब्लड कंसिस्ट 3 सेल्स. कौन से वो? फर्स्ट यूर Erythrocytes. RBC, second one leukocytes or WBC, and third one thrombocytes, Platelets. Oh, sorry, platelet. platelets, right? Now we are moving towards that third one, platelets. Just a minute. Okay. Now about platelets. So in our body, the normal value of platelets you might be found 2.5 lakh to 4 lakh. इसका जो रेंज है, नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में, दैट विल बी यू कैन से दैट 2.5 to 4 lakh in the blood in the that per cubic millimeter. जो भी आपने यूनिट देखा होगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, सेम यूनिट है इसके लिए भी, पर क्यूबिक मिलीमीटर. ओके, देन इसमें क्या होता है आपका platelets they are useful to stop your bleeding, to control your bleeding, to control the loss of your blood. उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, राइट? प्लेटलेट्स में मेन रोल क्या होता है इसका? they are able to deposit, they are able to stop the bleeding by forming the clot. क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है, उसमें से ब्लीडिंग को स्टॉप करता है. दैट इज द मेजर रोल ऑफ योर प्लेटलेट्स. गेटिंग? बट हम लोग अभी क्या करेंगे? प्लेटलेट्स, इंस्टेड ऑफ प्लेटलेट वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, प्लेटलेट से भी जरूरी एक दूसरा पॉइंट है, हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देंगे अभी. we will start platelet in next session. Okay, next lecture में हम लोग देखेंगे about platelets. Okay, now आपके पास में पीडीएफ जो है उसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिया हुआ है आपके पास में, that is blood group and transfusion. blood transfusion. Okay, आपको पता है ब्लड ग्रुप कितने टाइप के ब्लड ग्रुप है हमारे बॉडी में? 4. 4 टाइप. which one? A group, B group, O group, and AB group. Group A, Group B, AB and O, right? आप लोगों को खुद का ब्लड ग्रुप पता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर फिजिकली हमारा कॉलेज स्टार्ट रहता, सो आप खुद से ही खुद का ब्लड ग्रुप डिटेक्ट कर सकते हो. एक्सपेरिमेंटली वर्क में हम लोग देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, राइट? जस्ट कहते हैं आपको एक ओवरलुक बताऊंगा, बट उससे पहले एक और टेक्निक है, दैट इज ट्रांसफ्यूजन टेक्निक. ट्रांसफ्यूजन टेक्निक क्या होता है बॉडी में? द टेकिंग आउट ऑफ ब्लड, राइट? हम लोग बोलेंगे कि ब्लड लेना है, द टेकिंग आउट ऑफ द ब्लड फ्रॉम वन पर्सन एंड इंजेक्टिंग इट टू द अनदर पर्सन, राइट? एक पर्सन से ब्लड लेना है, दूसरे पर्सन को देना है. दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफ्यूजन टेक्निक. आर यू गेटिंग? Yes, Easy sir. transfusion? Yes, sir. Simple है. You have to just take the blood from one person, right, and just transfer to the another person. That will be called as a blood transfusion technique. Okay. अभी इसमें क्या होता है?
during transfusion you should have knowledge about that technique. आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. You should be have knowledge about these blood groups, right? ऐसे तो नहीं है ना, या किसी को ब्लड की जरूरत है तो हमने किसी पर्सन को पकड़ लिया, उसका ब्लड ले लिया और दूसरे पर्सन को दे दिया, राइट? इट इज नॉट एज मच इजी. उसके लिए क्या जरूरी है? दैट पर्सन शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस ग्रुप. उसको ग्रुप्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. दैट शुड बी नो द नॉलेज ऑफ द कलेक्शन ऑफ ब्लड. ओके, उसको उसमें नॉलेज भी होना चाहिए कि ब्लड को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग आगे, राइट? जस्ट इन आवर नोट्स जो आपको दिए है उसमें एक बार देखिए. द टेकिंग आउट ऑफ द ब्लड फ्रॉम वन पर्सन एंड इंजेक्टिंग इट इनटू द वेन ऑफ अनदर पर्सन और इनटू द अनदर इज कॉल्ड एज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. द पर्सन हु डोनेट द ब्लड इज कॉल्ड एज अ डोनर, राइट? अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैंने दिखाया, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ डोनर. जो डोनेट कर रहा है, ब्लड दे रहा है एक पर्सन को, मतलब दूसरे पर्सन के लिए. देन सेकेंड वन, इफ एनीवन रिसीव्स ब्लड, अगर कोई ब्लड रिसीव कर रहा है किसी से, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेसिपिएंट. ये दो वर्ड आपको, दो वर्ड्स जो है आपको याद रखने, डोनर एंड रेसिपिएंट. Then blood transfusion is a life-saving procedure in many disease conditions like hemorrhage, shock and anemia. Right? ये लाइफ सेविंग प्रोसेस है. आपने देखा होगा सीरियस कंडीशन में हो जाती है पेशेंट की, अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है ब्लड दिया जाता है, राइट? एनीमिया रहेगा वो पर्सन को उस टाइम पे दे सकते हैं. एक्सीडेंटल कंडीशन रहेगा, एक्सीडेंट हो चुका है किसी का, बहुत ज्यादा हिमोरेज हुआ है, हिमोरेज यानी बहुत ज्यादा ब्लड उसका लॉस हो चुका है बॉडी से, एट दैट टाइम आल्सो वी प्रेफर दिस टेक्निक, राइट? ट्रांसफ्यूजन टेक्निक से क्या करते हैं हम लोग, उसके बॉडी का वॉल्यूम जो है ब्लड का वो इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी शुरू रहे, राइट? सो that will be that's why we consider blood transfusion is called as your life saving procedure. Okay, then in that situation that person should have knowledge of blood group. इसमें blood group का knowledge होना जरूरी है. It was further justified in hematology. Okay? Immunohematology, आप अगर ये वर्ड देखोगे, immunohematology, immuno stands for your immune system, right? hematology stands for blood. आपको blood और immunity ये दोनों के बारे में knowledge होना जरूरी है, right? Immunohematology is an application of the principles of immunology to the study of red cell antigen and their corresponding antibodies in the blood, right? आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए क्योंकि बिकॉज इन योर ब्लड और ब्लड प्लाज्मा देयर आर सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज ऑकर, राइट? एंटीबॉडीज एंटीजेंस होता है, आपके ब्लड ग्रुप में भी रहेगा, वी विल सी आफ्टरवर्ड्स, राइट? सो यू शुड नो अबाउट दैट रिएक्शंस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, राइट? Human being can be divided into the various categories on the basis of the blood group. The blood group are decided by the presence or absence of certain red antigen, red cell antigen, and which are called as a blood group factor and reside on the surface of the membrane. आपके हर एक ब्लड सेल में, हर एक बॉडी में जो है, हर एक पर्सन के बॉडी में ब्लड सेल पर एंटीजेंस होते हैं, राइट? हर एक सेल को एंटीजन होता है और वो एंटीजन के ऊपर से वो सेल आइडेंटिफाई होती है वो कौन से ग्रुप में जाएगा, चाहे ए में रहेगा, ए बी और ओ ग्रुप. ओके, दैट विल बी गेट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंटीजन. एंटीजन का हम लोग को इसलिए नॉलेज चाहिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. देन जस्ट सी, these antigens are mainly lipoproteins or glycoproteins. The antigenic characters of the RBC are inherited and the antigen detected of the all blood groups is based on the principles of the heme agglutination or heme agglutination. Okay, I'm just writing here that spell.
रिएक्शन क्या होता है मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ आगे। ठीक है, अगर आपके बॉडी में सेल में जैसे बताया एंटीजन्स होता है, अगर वो किसी के एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, राइट, अगर ये किसी एंटीबॉडी के कांटेक्ट में अगर आ जाता है तो क्या होता है इसमें हीम एग्लूटिनेशन हो जाता है। हीम एग्लूटिनेशन मतलब क्या है, उसमें एक चेंज हो जाता है आपके ब्लड में, राइट। अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में अगर आपने देखा होगा दूध होता है हमारे पास में, दूध के ऊपर एक लेयर बन जाता है अगर उसको हीट करके कूल करते हैं तो, राइट। या तो फिर सेकेंड एग्जांपल लाइक उसी दूध में अगर आप साइट्रिक एसिड या तो आपका लेमन जो है उसको डाल दोगे तो क्या हो जाता है, क्या होगा, वो जम जाएगा, कर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा उसमें, राइट। दैट विल बी वी कैन से दैट, उसी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। उस तरीके का आपको नजर आएगा आपके ब्लड में, अगर वो रिएक्ट हो जाए एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में तो थोड़ा एग्लूटिनेशन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देन अबाउट 30 common occurring antigens, hundreds of other rare antigens, each of which of at certain time can lead to antigen antibody reactions, right। वहां पर लगभग 30 से ज्यादा आपको नजर आएगा एंटीजेंस, अलग अलग टाइप के अगर देखोगे तो 100 से भी ज्यादा आपको नजर आएगा एंटीजेंस पर्सन के बॉडी में, राइट। और उसके रिएक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं बॉडी में। Most of these are weak and there are two particular group of antigens more likely to cause blood transfusion reaction। अभी इतने ज्यादा देखे हमने, 30 देखे, 30 में से क्या होता है कि 100 टाइप जो है आपके लगभग सभी टाइप को अगर आप कंसीडर करोगे तो 100 से ज्यादा आपको नजर आएगा एंटीजेंस, बट उसमें से ओनली 2 ही जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं बॉडी में, 2 चीजें उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 एंटीजेंस we got the system to identify the blood group। वो सिस्टम का नाम है ABO सिस्टम, राइट। एक मेथड है आइडेंटिफाई करने की, उसको नाम दिया गया है ABO सिस्टम। इसमें चारों ब्लड ग्रुप कवर होते हैं, A, B, AB एंड O, राइट। इस मेथड में क्या है, इन अ hemoagglutination reaction the red cells antigen is called agglutinogen and the antibody involved in this reaction is called as agglutinin, okay। इसमें एंटीजन है agglutinogen and agglutinin is the antibody, right। एंटीजन एंटीबॉडी इसको डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, ओके। अभी ये जो हमने इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ऐसे आगे का जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, वो आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा इजी रहता है, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे डिवाइड किए जाते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। जस्ट सी द नेक्स्ट पॉइंट, 2 एंटीजन टाइप ए एंड टाइप बी। हमने टाइप ए क्या देखा, एग्लूटिनोजिन, एंड टाइप बी क्या देखा, एग्लूटिनिन, ओके। So 2 antigens we found in our body, okay, in our that RBC। उसमें से क्या होता है कि ABO सिस्टम जो है, ABO सिस्टम एंटीजन पीपल आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। उसको सिर्फ जो है 4 ग्रुप में डिवाइडेशन किया जाता है, बट हाउ दैट 4 डिवाइडेशन ऑकर, this depend upon the reaction obtained by mixing the RBC with 2 different reagents, okay। आपको क्या करना है कि RBC को 2 reagent के साथ में ट्रीट करना है, right। that is nothing but your anti-A and anti-B। अभी आप लोगों को और ज्यादा इजी कर देता हूँ, इस सिस्टम कैसे वर्क करता है। इसमें एंटी सीधा होता है, मतलब एंटीजन हम लोग यूज करते हैं एंटी-A एंड एंटी-B, उसको से डिवाइडेशन होता है। ना अगर हम लोग कंसीडर करेंगे फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट में क्या हो जाता है, मैं अगर आपको बोल दूं कि आप ब्लड सैंपल ले लो, एंटी ए एंटी बी हमारे पास में 2 सॉल्यूशन है, अगर वो सॉल्यूशन आप मिक्स करोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास स्लाइड में ले लिया, उसके ऊपर आपने 2 ड्रॉप ब्लड के ले लिए, राइट, and in that 2 drop you just add that anti A and anti B solution, okay। अगर मैं ऐसे बोलूंगा
ब्लड प्लस आपने लिया एंटी ए, ओके, इसमें डाला आपने एंटी ए, इसमें डाला आपने एंटी बी, उसको मिक्स कर दिया एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स यू मे फाउंड सम एग्लूटिनेशन, उसमें आपको एग्लूटिनेशन नजर आना शुरू हो जाएगा। एग्लूटिनेशन मतलब क्या है, जैसे आपको बताया कि दूध अगर रहेगा उसमें अगर कुछ मिक्स हो जाए तो उसका जो है लेयर चेंज हो जाता है, कर्ड फॉर्मेशन उसमें नजर आता है, उस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगा। या तो फिर यू मे फाउंड वन लेयर अबव दैट सरफेस ऑफ योर लिक्विड, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दूध के ऊपर जो साई या मलाई हम लोग बोलते हैं वो जो आता है उसको बोल सकते हैं एग्लूटिनेशन, राइट। अगर हमें ए और बी दोनों डाला है, अगर इफ यू found agglutination in the A, agglutination if you found in A, but if agglutination you couldn't find in the B, right, वही ब्लड सैंपल अगर लिया एंटी बी के साथ में अगर आप ट्रीटमेंट करोगे, अगर नो एग्लूटिनेशन आएगा, that indicate your blood group should be A, right? स्क्रीन विजिबल है सब लोगों के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, समझ में आएगा? You have to take the blood sample over the glass slide. You just add anti-sera, anti-A and anti-B solution जो आपके पास में रेडीमेड रहेगा. You just take that solution, add a drop of that solution over your drop of blood. You have to mix it properly, and after mixing, you just wait for 1 to 2 minutes, or after the 5 minutes, you may find these observations, right? बट ऑब्जर्वेशन आपको इस तरीके से आ जाए कि एंटी ए जो है वो एग्लूटिनेशन देगा, एंटी बी दे डू नॉट शो एनी एग्लूटिनेशन, दैट मींस योर ब्लड ग्रुप शुड बी ए। एंटी ए अगर एग्लूटिनेशन देगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्लड ग्रुप ए। सेकंड सिचुएशन, नाउ you just take the blood sample, add anti A, anti-B, but now in second situation, if your anti-A, they do not show any agglutination, while anti-B, if they are showing some agglutination, agglutination अगर B में दिख रहा है A में नहीं है, that indicates your blood group should be कौन सा रहेगा? B. Exactly. Your blood group should be B. Okay. Now in third situation, क्या रहेगा सिचुएशन बता सकता है कोई? Blood plus anti A, blood plus anti B. What should be the situation? If you are A, that also showing agglutination, B also showing that agglutination, what it indicates? AB group. Your blood group should be AB, right? Now fourth situation, you might be find that fourth one also, blood plus anti-A, anti-B, क्या होगा इसमें? सर ओ, हाँ, No agglutination. ओ blood groups. A. No agglutination in B, right? So your blood group should be O group. O group. O. Are you getting that? Yes, sir. Okay. So that's why this system is called as ABO system. इसको नाम दिया गया है ABO system,
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस होता है, दे आर आइडेंटिफाइड ओनली टू पॉजिटिव एंटीजन एंड एंटीबॉडी, वन एंटीजन वी कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन एंड एंटीबॉडी कॉल्ड एज एग्लूटिनिन। एग्लूटिनेशन एंड एग्लूटिनिन ये दो चीजें उन्होंने याद की और उसके बेसिस पर एक चार्ट बनाया, एक प्रोसीजर बन गई और हमारे ब्लड ग्रुप जो है वो डिवाइड हो गए 4 टाइप में। Got it? Now just see one by one blood group. Okay. Just see first blood group A. अभी A blood group क्या होता है देखिए, when anti A and anti B sera are added to blood sample and agglutination is observed with anti A, the blood group should be A. समझ में आपको यही सेंटेंस बोला गया है। A blood group में क्या होता है, when your blood react with anti A and anti B sera, but the agglutination found with anti A, that indicate your blood group is A. Got it? Yes, sir. बोल सकते हैं in B blood is react with anti A and anti B, agglutination only found at anti B, that's why the blood group is B. Third situation, if your blood treat with the anti A and anti B, if agglutination is found in both A and B, that indicates your blood group should be AB, right? And fourth situation में क्या होगा, blood is treat with the A and B antiseras, right? If there will be no agglutination found, that indicates blood group O. Got it? Okay. Yes, sir. Sir, blood group O once. Yes. Sir, blood group O एक बार समझाओ ना। ब्लड ग्रुप O में क्या होता है, एग्लूटिनेशन होगा ही नहीं ना। आपका ब्लड सैंपल ले लिया आपने, एंटी A डाल दिया, एंटी B डाल दिया, उसको मिक्स किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखोगे वहां पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ब्लड आपका नॉर्मल ही रह जाएगा। सो दैट इंडिकेट्स देयर विल बी नो एग्लूटिनेशन, वहां पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, नो एग्लूटिनेशन। अगर दोनों के लिए नहीं हो रहा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज O। दोनों जगह पर अगर हो जाएगा तो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं AB में, राइट? अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, दैट इंडिकेट्स द ब्लड ग्रुप O, राइट? नाउ जस्ट सी ब्लड ग्रुप A, आपके नोट्स में देखिए अभी, राइट? जो फर्स्ट पैरा है हमने अभी पढ़ा था, दैट एंटी A एंटी B सीराज अगर आप ब्लड के साथ में ट्रीट करोगे, देन ओनली यू मे फाइंड द agglutination at group at antisera A, that indicates your blood group should be A. Okay. This indicates that antigen A is present on RBC and the serum contains antibody for the B, right? The group A blood is compatible with blood group A and blood group O and is incompatible with B or AB. अभी इसमें क्या हो जाता है आप देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि आपकी बॉडी में ब्लड सेल है, ब्लड सेल पे आपके एंटीजन एंटीबॉडीज है, राइट? हमने अभी देखा दो ही चीजें हमें ऑब्जर्वेशन हुआ है, दैट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एग्लूटिनेशन एंड एग्लूटिनिन, ये दो चीजें हमारे ब्लड पर होती है, आपके सेल पे होती है। एग्लूटिनेशन इज द एंटीजन, एग्लूटिनिन इज एन एंटीबॉडी। अभी ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एंटीसीरा ए जो है इसके लिए आपके एंटीजन प्रेजेंट है, आपके बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है, बट एंटी बी के लिए आपके बॉडी में जो है एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडी रहेगा तो क्या होगा, सिंपल एक एग्जांपल आपको देता हूं, तो जस्ट वेट, ओके, आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। कंसीडर करिए पेन है और उसका कैप है, राइट? अगर आपके बॉडी में पेन यानी एंटीजन एंटर कर देगा, एंटीजन आएगा, अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडी रहेगा तो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन जैसे आएगा उसको अटैच हो जाएगा और उसका जो इफेक्ट है उसको स्टॉप कर देगा, राइट? इसका जो फ्रंट है, टिप जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो पेन का मतलब कुछ बनता है आपके बॉडी में, कुछ भी नहीं, इससे कुछ होगा, कुछ इंक इधर उधर आएगा, राइट? दैट इज वी कैन से दैट द बेस्ट एग्जांपल।
इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में है, एंटीजन को ब्लॉक कर देगा तो उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया अपने ए में, ए एंटीजन को जो है उसके पास में सिर्फ एंटीजन है, एंटीबॉडीज नहीं था, इसलिए एग्लूटिनेशन प्रोड्यूस हो गया, राइट। सेकेंड में क्या हो गया, ब्लड एंटी बी के साथ में रिएक्ट हो गया बट they do not show any effect, right? No agglutination we found. Why? Because they possess antibodies. एंटीबॉडी था, उसके एंटीजन के साथ रिएक्ट हो गया, उसको इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं बना, राइट? दैट इंडिकेट्स द ब्लड ग्रुप ए, राइट। उसी तरीके से अगर आप बी में देखोगे, एंटीजन ए जो है उसके लिए एंटीबॉडीज आपके बॉडी में रह गया, राइट? एंटीबॉडी रह गया, बट एंटीजन जो बी है उसके लिए एंटीबॉडी नहीं है। सो बी में क्या मिल गया आपको, एग्लूटिनेशन यू में फाउंड, ए में नहीं था, इसलिए ब्लड ग्रुप हमें मिल गया बी, राइट। थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, क्या होगा थर्ड सिचुएशन में? सर दोनों में नहीं, दोनों में क्या होगा, एंटीजन मिल जाएगा। यू हैव एंटीजन बट यू डोंट हैव एनी एंटीबॉडी, उसमें एंटीबॉडीज नहीं रहेगा, राइट? एंटीबॉडी नहीं है, दैट्स व्हाई यू फाउंड द एग्लूटिनेशन एट बोथ एंटी ए एंड एंटी बी, राइट? एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द ब्लड ग्रुप ए बी, ओके। फोर्थ सिचुएशन में क्या होगा अभी, सर एंटीबॉडीज है पर एंटीजन नहीं है। एंटीजन ही नहीं है और अवेलेबल है, एंटीबॉडी फॉर ए एंड फॉर बी दोनों भी उसमें अवेलेबल था, इसलिए क्या हो गया, दोनों को भी ब्लॉक कर दिया। दोनों को ब्लॉक कर दिया तो आपका जो ब्लड जो एग्लूटिनेशन होना चाहिए वो नहीं होगा, नो एग्लूटिनेशन वी फाउंड एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी कॉल्ड एज अ ब्लड ग्रुप ओ, राइट। अभी वन बाय वन अगर आप देखोगे, ब्लड ग्रुप ए जो रहेगा, ए ब्लड ग्रुप के लिए आपको किसका किसका ब्लड चल सकता है, आई थिंक ये आपको भी पता रहेगा। ब्लड ग्रुप ए एंड ओ। तो ब्लड ग्रुप ए वालों का चलेगा और ओ ब्लड ग्रुप, वेरी गुड, ओ ओ का चलेगा। किसका किसका ब्लड ग्रुप नहीं चलेगा, अभी मैं यहाँ पर ऐसे टिक करता हूँ। We don't require AB and बी एंड ए बी। राइट, बी वालों का नहीं चलेगा, उसको ए बी वालों का नहीं चलेगा। अगर जरूरत पड़े तो ए को ए ब्लड ग्रुप ही चाहिए, इतना तो हम लोग को नॉलेज है, सेम ब्लड ग्रुप चलता है, राइट। ओ वालों का भी चल जाता है। सेम सिचुएशन फॉर बी, बी में क्या रहेगा, बी एंड ओ बी एंड ओ का, राइट। कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं चलेगा, ए एंड ए बी ए एंड ए बी, ए बी, राइट। थर्ड सिचुएशन, ए बी चलेगा, ऑल ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, किसका नहीं चलेगा, उसको किसी का भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका ब्लड ग्रुप चल जाता है उसको, राइट। एंड लास्ट वन ओ, ओ में किसका चाहिए और किसका नहीं चाहिए, ओ ब्लड ग्रुप ओनली ओ किसका नहीं चाहिए, ए बी एंड ए बी बी एंड ए बी ए। इतना समझ में आया। अभी मैं सिर्फ इसमें एक और आपको इजी कर देता हूं। सब चीजों में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप किसका चल रहा था, ओ। ओ ब्लड ग्रुप किसको किसको चलता है, ओ को सिर्फ खुद का चाहिए, किसी का नहीं चाहिए, राइट। ओ का किसको चलता है, ए को चलता है, ए को खुद को चलता है, बी को भी ओ का चल जाता है, बी को बी का खुद का ही चाहिए, राइट।
नेक्स्ट वन AB, AB को A का भी चलता है, AB को B का भी चलता है एंड AB को O का भी चलता है, राइट। मतलब AB को खुद का AB का भी चलेगा, ओनली AB चलेगा, ओनली B भी चलेगा, ओनली O भी चलेगा, राइट। A को क्या है, फिर चलेगा कौन सा O, और खुद का A को ही चलेगा, B O का चलेगा या तो खुद का B का B को चलेगा, राइट। जैसे AB they can accept anyone, उसको कोई भी चलेगा, AB और O। गॉट इट। ये चार्ट अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा याद रखने के लिए। गॉट इट। Yes, sir. sir, आपको याद आई होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मैंने बोला था कि एक पर्सन होता है, उससे ब्लड लिया जाता है एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू सेकंड पर्सन, तो उसको हमने नाम दिए थे। हैव यू नो दैट, हैव यू रिमेंबर दैट नेम? एक को क्या बोलेंगे हम? Donor. Donor. डोनर, वेरी गुड। called as a donor and second one will be called as receptor, इसमें आप लोगों को एक वर्ड यूज करता हूं, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये दो कंसेप्ट है हमारे पास में, राइट। यूनिवर्सल डोनर मींस व्हाट? ओ, जो किसी को भी चल देगा, किसी को भी उसका ब्लड ग्रुप चलेगा, ए को चलेगा, बी को चलेगा, ए बी को चलेगा, राइट। Yes, अरे sir. यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब क्या? यूनिवर्सल, किसी का भी वो लेगा, लाइक ए बी ओ और खुद का ए बी होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। गॉट इट? Yes, sir. Okay, so that's it we can say from your today's lecture. Okay, आज के लिए इतना ही, ठीक है। We just recalled our RBC, we just discuss about hemoglobin, we also discuss about here WBC के टाइप में हमने डिस्कस किए, then we started platelets, उससे पहले हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ा अभी, राइट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक्स क्या होती है, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, राइट। ब्लड ग्रुप के टाइप्स भी देखे, ब्लड ग्रुप के टाइप्स कैसे डिवाइड हुए, एबीओ सिस्टम के थ्रू, एबीओ सिस्टम का हमने चार्ट बना के देखा, राइट। और यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, दैट रेसिपिएंट आपके सामने नोट्स में डिटेल में दिया, आप वहां से भी पढ़कर देख लो। जो मैंने आपको बताया वो थिंक याद रखोगे तो आप खुद से राइटिंग कर सकते हो। ओके, Yes, sir. okay, so much, just give me attendance. Roll number 1, roll number 2, 3, 4, roll number 3, roll number 4, Present, sir. अमीशा आपका कौन सा है रोल नंबर? 4. ओके, रोल नंबर 5, Present, sir. रोल नंबर 6, रोल नंबर 6, 7, 8, Yes, sir. 9, Present, sir. 10, 11, present, sir, 12, 13, 14, Present, sir. 16, 50. 15 है, Yes, sir. 16, 17, present, sir, 18, Present, sir. 19, present, sir,
20, Yes, sir. 21, 22, Yes, sir. 23, 24, Yes, sir. 25, Yes, sir. 26, Yes, sir. 27, Present, sir. 28, 29, Present, sir. 30, Present, sir. Yes, sir. 31, 32, Present, sir. 33, Yes, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, 45, Present, sir. 46, 47, 48, 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, 55, Yes, sir. 56, Present, sir. 57, 58, 59, Present, sir. 60, Present. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, Present, sir. okay. Sir, hello sir. हाँ, Sir, yes, 40 is present. Mayur Bartolo. 40, 8. okay. Sir, तो 40. Present. क्या नंबर है? 13, sir. निखिल बोल. अगर आपका अटेंडेंस रहा पे डालो, ठीक है? तो ये ग्रुप मत करिए, लेक्चर इसी में कंटिन्यू होना है आपका केमिस्ट्री का, Sir, 47. ठीक है? हाँ, ग्रुप पे डालने बाद में। सर आप नहीं आ रही। हाँ, yes, Sir, आपने क्या बोला सुना ही नहीं दिया.